السلام علیکم ناظرین، نیوز 84 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ بہار میں ایس آئی آر کے دوران آدھار کو شناختی ثبوت کے دستاویز تصور کیا جائے، سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو ہدایت۔ نیپال میں فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور دوسرے ایپس پر لگی پابندی کے بعد تشدد پھوٹ پڑا، نوجوان پارلیمنٹ کی عمارت میں داخل 9 افراد ہلاک، کاٹمانڈو میں کرفیو لگا دیا گیا۔ ہت کی عزت کے کیس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو سپریم کورٹ کی راحت، بی جے پی کی درخواست خارج، سیاست میں جلد موٹی ہونی چاہیے، معزز بینچ کا احساس۔ نائب صدر جمہوریہ کا انتخاب، بی آر ایس پارٹی حصہ نہیں لے گی، کے ٹی آر کی وضاحت، ریاست میں کھاد کی قلت کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومت دونوں ذمہ دار، بی آر ایس لیڈر سریش ریڈی کا الزام۔ کرناٹک کے مانڈیا کے مدور ٹاؤن میں گنیش جلوس کے دوران 2 گروپوں کے درمیان سنگ باری کا تبادلہ، 8 زخمی۔ جموں کشمیر کے کلگام میں انکاؤنٹر، ایک عسکریت پسند ہلاک، دہشت گرد سازش کے معاملے میں این آئی اے کے 5 ریاستوں میں 20 مقامات پر دھاوے۔ موسی بیوٹیفیکیشن کے نام پر ملہوالی لوٹ کی جا رہی ہے، کالیشورم اور موسی پروجیکٹ پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے دعووں پر کے ٹی آر کا شدید رد عمل۔ حیدرآباد شیخ پیٹ فلائی اوور کے پاس بے قابو گاڑی ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گئی، بائک سوار 2 نوجوان شدید زخمی، کار ڈرائیور اور ساتھی تحویل میں۔ مصری گنج بڑی گنبد درگاہ کے احاطے میں خاتون کے اقدام خود سوزی سے سنسنی خیز واقعہ، عثمانیہ ہاسپٹل میں زیر علاج۔ غزہ میں ایک اور بلند رہائشی عمارت، یہودی فوج کے حملے میں زمین دوز، 50 سے زیادہ شہید۔ اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف برسلز اور میکسیکو میں زبردست احتجاج، انسانی سروں کا سمندر، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ نے آج ایک اہم رولنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بہار میں ایس آئی آر کے دوران الیکشن کمیشن کو آدھار کو بھی 12 دستاویزات میں شامل کیا جانا چاہیے، تاہم اعلیٰ عدالت نے یہ واضح کیا کہ آدھار شہریت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ شہریوں کو ووٹ دینے کا مکمل حق حاصل ہے، حکام آدھار کی تصدیق کے مجاز ہیں۔ جسٹس سوریہ کانت کی بینچ نے بہار میں ایس آئی آر سے متعلق درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے واضح کیا کہ الیکشن کمیشن کو آدھار کو کسی بھی شخص کی شناخت کے لیے قبول کیا جانا چاہیے۔ نیپال میں سوشل میڈیا ایپس فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، واٹس ایپ اور ایکس جیسے 26 سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگائے جانے کے بعد نوجوان بھڑک اٹھے ہیں، سڑکوں پر زبردست احتجاج کیا جا رہا ہے۔ پیر کے دن نوجوانوں کے احتجاج کے دوران تشدد کے واقعات میں 9 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ دارالحکومت کاٹمانڈو میں کئی مقامات پر احتجاجی نوجوان اور پولیس کے درمیان دھکم پیل اور جھڑپیں دیکھی گئیں۔ کاٹمانڈو میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کی ہے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ سینکڑوں نوجوان نیپال کی پارلیمنٹ میں داخل ہو گئے اور توڑ پھوڑ کی۔ وزیر اعظم کی پی او لی نے سوشل میڈیا ایپس پر لگائی پابندی کی مدافعت کی ہے، تاہم عوام کا کہنا ہے کہ فیس بک یا انسٹاگرام سے جو سامان فروخت ہو رہا تھا ان کا کاروبار رک گیا ہے۔ یوٹیوب اور جٹ ہب جیسے پلیٹ فارمز کے بند ہونے سے بچوں کی پڑھائی مشکل ہو گئی ہے۔ واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر چیٹنگ کرنے والے بیرون مقیم افراد کو بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ احتجاجیوں نے فوری پابندی کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
बीजेपी के एमपी रविशंकर प्रसाद ने नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात को मज़ाक का खैस करार दिया। मीडिया से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने यह कहा था कि मुल्क की रूह के लिए नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए उन्हें वोट दें। मुल्क की रूह की बात करने वाले सुदर्शन रेड्डी ने चारा स्कैम के मुजरिम लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। रविशंकर प्रसाद का कहना था कि सुदर्शन रेड्डी को मुल्क की रूह की बात नहीं करनी चाहिए। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। हम सभी जजेस की बहुत इज्जत करते हैं, चाहे वो सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो। लेकिन जब कोई जज चुनावी अखाड़े में आता है और कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो सवाल तो उठेंगे। अब देखिए, उनका आज का स्टेटमेंट है, एक अखबार में छपा है, वोट फॉर मी टू सेव सोल ऑफ द नेशन, अपोजिशन वीपी पिक। और देश के कॉन्शियंस को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है। By entrusting me with this office, you will be choosing to defend parliamentary traditions, to restore dignity and debate, and to ensure that RSS stand as a true temple of democracy. बहुत कड़ी कड़ी बातें कही गई हैं और कॉन्शियंस की बात कही गई है। हाँ, देश के सोल को बचाने के लिए मुझे वोट दें। बीआरएस पार्टी के एमपी सुरेश रेड्डी ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से मुताल्लिक पार्टी के मौक़िफ़ पर वजाहत की कि हमने तमाम ऑप्शंस पर गौर किया है, फिर हमने इंतखाब से दूर रहने का फैसला किया है। सुरेश रेड्डी ने बताया कि हमारी पार्टी क़यादत तेलंगाना के किसानों को मौसर खाद की फराहमी पर जोर दे रही है, लेकिन मरकज़ की बीजेपी और तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत दोनों इस मसले को हल करने में नाकाम रहे, इसलिए हमने वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया है। For shortage of fertilizer, in particular urea. We requested Government of India repeatedly, we requested the state government, but in spite of all these such severe and our regular requests, both the governments have failed to address the farmers' issue. So, since there is no nota available on the ballot paper, so abstaining from this election should be treated as none of the above. And this is the way we register our protest against the farmers' distress in Telangana. सीपीआई की जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा है कि बाएं बाजू की जमातें इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा हैं और बाएं बाजू की जमातें नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की मुकम्मल तायद कर रही हैं। उनका कहना था कि दस्तूरी इक़दार की बरकरारी के लिए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने अहम रोल अदा किया है। मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए उनका इंतखाब अहमियत का हामिल है। तेलंगाना बीजेपी की तरफ से दर्ज कराए गए हितगज़्ज़त के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को राहत देते हुए बीजेपी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस की बेंच ने दरख्वास्त गुजार बीजेपी की सरजनिश की। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस उत्तल एस. चंदोरकर की बेंच ने कहा कि अदालत इस मामले में मदाखलत नहीं करेगी। मुअज़्ज़ज़ बेंच का कहना था कि हम बार बार ये कहते रहे हैं कि अदालत को सियासी लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। अगर आप सियासतदान हैं तो आपकी जिल्द इस तरह के रिमार्क्स को बर्दाश्त करने के लिए मोटी होनी चाहिए। कर्नाटक मानरिया की मडूर टाउन में इतवार की रात गणेश जुलूस के दौरान दो ग्रुपों के दरमियान संगबारी का तबादला अमल में आया। इस वाक़े के बाद मुकामी मस्जिद के सामने हुजूम जमा हो गया। दो ग्रुप आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर संगबारी करने लगे। पुलिस ने मुकामी वाक़या पहुंचकर दोनों ग्रुपों को मुंतशिर किया। तशद्दुद के इस वाक़े में 8 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है, जिन्हें मडूर की टाउन अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुकामी पुलिस ने हालात को पुरअमन बताया। 21 अफराद को अब तक गिरफ्तार किया गया है।
कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वरा ने मुदव्वर टाउन में हालात को पुरअमन और काबू में बताया है। मीडिया से बात करते हुए परमेश्वरा ने बताया कि गुज़िश्ता रात 2 ग्रुपों में संगबारी का तबादला अमल में आया था। पूरे टाउन में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। उन्होंने चाकूजनी के एक वाक़े की भी तस्दीक की है। वजीर दाखिला ने सूरत हाल को काबू में बताया है। दूसरी तरफ कर्नाटक मांड्रिया की मुदव्वर टाउन में इतवार की रात पेश आए संगबारी के वाकयात को लेकर जाफरानी तंजीमों की तरफ से आज सुबह एहतजाज किया गया। पुलिस ने एहतजाजी हुजूम को मुंतशिर करने के लिए हल्की ताकत का भी इस्तेमाल किया। तशद्दुद से मुतासरा मुदव्वर टाउन में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर बेरोडा देहात में भी गणेश जुलूस के दौरान मुबैना संगबारी का वाकया पेश आया। लालबाग पुलिस स्टेशन की अहदेदार अमित सिंह जदन ने बताया कि ग्राम वेरोडा में हालात पुरअमन हैं। SFTF फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जुलूस के दौरान संगबारी हुई थी और इसके बाद हालात कशीदा हुए थे, ताहम पुलिस ने हालात को काबू में किया। उन्होंने अवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की है। राजस्थान की नायब वजीर आला दिया कुमारी ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया है। मीडिया से बात करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि जहां कहीं भी हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से मदद दरकार रहेगी, मुतासरीन को मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। अजमेर की मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए दिया कुमारी ने बताया कि इंतजामिया अभी भी बचाव और राहतकारी के कामों को अंजाम दे रहा है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में नेवी चिल्ड्रन स्कूल के तलबा से मुलाकात की। इस मौके पर बहरिया के चीफ दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद थे। बच्चों ने भी वजीर दिफा से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव और इमदाद की सरगर्मियां जारी हैं। NDRF की तरफ से सैलाब से शदीद मुतासरा फाजिलका जिले में बचाव का काम अंजाम दिया जा रहा है। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए कश्तियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तराखंड की हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे पटरियों पर चट्टानों का मलबा और दरख्तों के गिरने से रेल खिदमात आर्जी तौर पर मुतासर बताई गई हैं। इत्तला मिलने पर रेलवे हुक्काम मुकाम वाक़या पहुंच गए। पटरियों पर से गिरे हुए दरख्तों और चट्टानों के मलबे को हटाया जा रहा है। रेलवे ट्रेन का मुआयना भी किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में एक अस्करियत पसंद हलाक हो गया है। बताया जाता है कि कुलगाम के गुडर जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान इनकाउंटर हुआ और इस दौरान एक अस्करियत पसंद हलाक हो गया। महलूक अस्करियत पसंद की अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की बारामूला में NIA की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई है। दहशतगर्द साजिश मामले को लेकर यह तलाशी मुहिम अंजाम दी गई है। तल्लाह के 5 रियासतों में तकरीबन 20 मुकामात पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी व साबिक वजीर आला शेख अब्दुल्लाह को आज उनकी बरसी के मौके पर खिराज पेश किया जा रहा है। श्रीनगर में वाक़ शेख अब्दुल्लाह की मज़ार पर साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने फूल डाले और फातिहा ख्वानी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे।
यमुना नदी में मुसलसल पानी की सतह में इजाफे से ताजमहल भी जद में आ गया। पानी ताजमहल की दीवार तक पहुंच गया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से यमुना नदी में मुसलसल पानी में इजाफा देखा जा रहा है और यही वजह है कि पानी अब ताजमहल तक पहुंच गया है। बताया जाता है कि 1978 में भी ऐसी ही सूरत हाल पेश आई थी। बीआरएस पार्टी की कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट और मूसा नदी की खूबसूरती से मुताल्लिक वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के दावों पर शदीद तनकीद की है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि पहले वज़ीर आला ने कहा था कि मूसी प्रोजेक्ट के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए दरकार हैं। अक़सात में स्कैम हो रहा है। उनका कहना था कि गंडीपेट तक गोदावरी का पानी लाने के लिए 7,600 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जाएं, जबकि 1,100 करोड़ रुपए का कुंडापोचम्मा सागर का मंसूबा पहले से ही मौजूद है। केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला का दावा था कि कालेश्वरम से 0 एकड़ को भी सैराब नहीं किया गया, जबकि हुकूमत के दस्तावेजात में यह बताया गया कि 20 लाख एकड़ कालेश्वरम से सैराब किया गया। उनका कहना था कि अगर कालेश्वरम मुनहदिम हो जाता तो कहां से 12 लाख क्यूसिक पानी का जखीरा हो पाता था। केटीआर ने कहा कि मूसा नदी की खूबसूरती के प्रोजेक्ट के नाम पर लूटमार की जा रही है। इस मौके पर केटी रामाराव ने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के कालेश्वरम को लेकर किए गए रिमार्क्स का भी हवाला दिया। उनका कहना था कि अकबरुद्दीन अवैसी ने भी कालेश्वरम से मुताल्लिक हुकूमत के रवैये पर मौसर सवाल उठाए थे। वाज़ेह है कि नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के सिलसिले में केटीआर ने वजाहत की कि बीआरएस पार्टी इस इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी। और वहीं दूसरी तरफ केटीआर से जब कविता की पार्टी से मुअत्तली को लेकर सवाल किया गया तो केटीआर का कहना था कि बीआरएस पार्टी ने पहले ही इस बारे में वजाहत कर दी है और कार्रवाई भी की गई है। कार्रवाई के बाद मजीद कुछ कहने को नहीं रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी इदारों के लिए दशहरे की तातीलात का ऐलान कर दिया है। स्कूल्स के लिए तातीलात 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रहेंगी। जूनियर कॉलेजेस के लिए तातीलात 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रहेंगी। तेलंगाना हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तीरंदाज विमेंस चैंपियन चटिका तानी प्रति से मुलाकात की है। कनाडा में हाल ही में मुनक्किदा आलमी मुकाबलों में तानी प्रति ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पहले उन्होंने शंघाई में सीनियर वर्ल्ड कप में भी सिल्वर मेडल हासिल किया था। वज़ीर आला ने तीरंदाज तानी प्रति को मुबारकबाद दी और तहनीत पेश की। वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया कि हुकूमत ओलंपिक्स के लिए तानी प्रति को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी ताकि वो गोल्ड मेडल हासिल कर सके। दिल्ली में तेलुगुदेशम पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास के बाद पार्टी लीडर एल कृष्णा देवारेलू ने बताया कि नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए तेलुगुदेशम एनडीए के उम्मीदवार की मुकम्मल तायीद करेगी। इस मौके पर बीजेपी के वजीर प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने पीर को तेलंगाना लिबरेशन डे के नाम से मनाई जाने वाली तकारीब का पोस्टर जारी किया। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने बताया कि 12 सितंबर से रैलियों का आगाज होगा। रियासत भर में मकानात पर कौमी परचम लगाए जाएंगे। 14 और 16 सितंबर को रियासती सतह के गोलमेज इजलास होंगे। बीजेपी लीडर ने बताया कि 17 सितंबर को लिबरेशन डे की तकारीब में मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। 17 सितंबर को हर देहात में कौमी परचम लहराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बीआरएस पार्टी ने 17 सितंबर को रियासती सतह पर मनाने का फैसला किया था, लेकिन बाद में इसे नजरअंदाज कर दिया गया। कांग्रेस भी इसी पर अमल कर रही है। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि मरकज की बीजेपी हुकूमत खाद की फराहमी के मामले में तेलंगाना के किसानों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि खाद की फराहमी के लिए रियासत से नुमाइंदगी करने वाले वुज़रा से हमने नुमाइंदगी की और कई बार खतूत भी लिखे गए। उन्होंने बताया कि खाद की तैयारी और सरबराही मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत के कंट्रोल में है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। बीजेपी साजिश करते हुए रियासत में खाद की किल्लत के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि रियासत में 11 लाख मीट्रिक टन यूरिया आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 5
1.2 लाख मीट्रिक टन यूरिया ही आया है। उनका कहना था कि मरकज की बीजेपी हुकूमत को बरतरफ किया जाना चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि किशन रेड्डी और बंडी संजय तेलंगाना की नुमाइंदगी करते हैं और इन वज़रा को मरकज से खाद के हुसूल के लिए कोशिश करनी चाहिए। रियासती हुकूमत ने कहा कि खाद की कमी की वजह से ज़रूरी पैदावार मुतासर होने का खदशा है। बीआरएस पार्टी से मुबैना तौर पर इन्हिराफ करने वाले 9 अरकान असम्बली ने गुज़िश्ता रात वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिलसिले में स्पीकर को फैसला लेने की हिदायत दी थी और स्पीकर ने नोटिस भी जारी की है। वज़ीर आला से मुलाकात की तफसीलात सामने नहीं आई। अमीरपेट में वाक़ई एचएमडीए के दफ्तर के रूबरू ट्रिपल आर अराजी मुतासरीन की तरफ से एहतजाज किया गया। मुतासरीन का कहना था कि अलॉटमेंट में तब्दीली की वजह से उनकी अराजियात को छीना जा रहा है। मार्केट की कीमत से कम मुआवजा दिया जा रहा है। रंगारेड्डी जिले के मनोगोड़ो हल्के के चोटोपल मंडल के अफराद एचएमडीए के दफ्तर पहुंचे थे। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। टोलीचौकी शेखपेट फ्लाईओवर के करीब बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर सड़क की दूसरी जानिब जाकर उलट गई। कार की टक्कर से बाइक सवार वेनू और आसिफ शदीद जख्मी हो गए। कार में सवार 4 अफराद मुबैना तौर पर नशे की हालत में बताए गए हैं। इत्तला मिलते ही टोलीचौकी पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कार ड्राइवर सुनील और उसके 3 साथियों को तहवील में ले लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। शालीबंडा पुलिस स्टेशन हदूद के मिसरीगंज बड़ी गुंबद दरगाह के अहाते में खातून की खुदसोजी की कोशिश का वाक़या पेश आया है। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिस के कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा मुकाम वाक़या पहुंच गए। खातून को झुलसी हुई हालत में उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा खातून जबीन फातिमा के शोहर का 8 साल पहले इंतकाल हो चुका था और वो 5 बच्चों की माँ हैं। इस दौरान रहीम नामी शख्स से उनकी दोस्ती हुई थी। रहीम की तरफ से मुबैना तौर पर घर आकर गाली गलौज करने पर जबीन फातिमा दिल बर्दाश्ता हुई थी और यही इक़दाम खुदसोजी की वजह बताई जा रही है। शालीबंडा पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है। गजा में यहूदी फौज ने एक और बुलंद रिहायशी इमारत को जमीन दोस्त कर दिया है। बताया जाता है कि गजा सिटी में यहूदी फौज ने 24 घंटों के दौरान बदतरीन बर्बरियत के जरिए 50 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। बताया गया है कि अलरोहिया बिल्डिंग को भी मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया। हमले के बाद तबाहशुदा इमारत से चीखो पुकार की आवाज़ें सुनी गईं। दर्जनों मासूम बच्चों के जख्मी होने की इत्तला है। यहूदी फौज ने कई बड़ी इमारतों को निशाना बनाया है। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक यहूदी फौज के हमलों में 64,368 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा जख्मी बताए गए हैं। इमदाद के लिए गए कई लोग भी जख्मी हुए हैं। गजा के अलावा खान यूनुस और दूसरे मुकामात पर यहूदी फौज की तरफ से बदतरीन बमबारी की गई है। यूरोपियन दारुल-हुकूमत ब्रसेल्स में फ़लस्तीन के लिए एक और बड़ा मुजाहरा किया गया, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 70,000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। पहले मुजाहरे की तरह इस मुजाहरे को भी रेड लाइन मार्च फॉर फ़लस्तीन का नाम दिया गया था। ये मुजाहरा ब्रसेल्स के नार्ड स्टेशन से शुरू हुआ और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ यूरोपियन क्वार्टर्स पर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। मुजाहरीन ने बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी परचम और मुख्तलिफ बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक़ में नारे दर्ज थे। और दूसरी तरफ मैक्सिको में भी इंसानी सरों का समंदर देखा गया। हज़ारों की तादाद में मुकामी अवाम ज़ोकालो स्क्वायर पर जमा हुए। आज़ाद फ़लस्तीन की हिमायत में नारे लगाए गए। यहूदी जारहियत बंद करो के नारों की गूंज भी सुनाई दी। एहतजाजी अपने गले में फ़लस्तीनी कोफिया डाले हुए थे। बच्चों की बड़ी तादाद भी इस एहतजाज में शरीक हुई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि उनकी फ़ौज गजा शहर उसके नवाह में अपनी कार्रवाइयाँ मज़ीद गहरी कर रही है। उनका कहना था कि हुकूमत ने गजा के सबसे बड़े और गुंजान आबाद शहर पर कंट्रोल के मंसूबे को मंजूरी दे दी है। यह फैसला जंग के 23 माह के बाद सामने आया है। नेतन्याहू ने काबीना के इजलास के आगाज़ में कहा कि हम गजा शहर के नवाह और अंदरूनी इलाकों में अपनी कार्रवाइयों को वसअत दे रहे हैं। उनके मुताबिक हम दहशतगर्दी की बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहे हैं और निशानदही शुदा दहशतगर्द ब्रिजों को ढा रहे हैं।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو دھمکی دے دی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہر کوئی یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اسرائیلی میری شرط مان چکے ہیں اور اب حماس کی باری ہے ان کی شرائط کو قبول کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ شرائط قبول نہ کرنے پر حماس کو خطرناک نتائج سے خبردار کر رہا ہوں اور یہ میری آخری وارننگ ہے، اس کے بعد کوئی وارننگ نہیں دوں گا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنئی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اسرائیل سے ہر قسم کے تعلقات ختم کرنے ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنئی نے ایرانی صدر اور کابینہ سے ملاقات میں کہا کہ اسرائیلی ریاست شرمناک جرائم کر رہی ہے۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک جو اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اسرائیل سے ہر قسم کے تعلقات کا خاتمہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت اسرائیل کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ بہار میں SIR کے دوران آدھار کو شناختی ثبوت کا دستاویز تصور کیا جائے، سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن کو ہدایت۔ نیپال میں فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور دوسرے ایپس پر لگی پابندی کے بعد تشدد پھوٹ پڑا، نوجوان پارلیمنٹ کی عمارت میں داخل، 9 افراد ہلاک، کاٹمانڈو میں کرفیو لگا دیا گیا۔ ہت کی عزت کے کیس میں وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کو سپریم کورٹ کی راحت، بی جے پی کی درخواست خارج، سیاست میں جلد موٹی ہونی چاہیے، معزز بینچ کا احساس۔ بہت انتظار کے بعد انتخاب سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے، ریاست میں کھاد کی قلت کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومت دونوں ذمہ دار، BRS لیڈر سریش ریڈی کا الزام۔ کرناٹک کی مانڈیا کے مدور ٹاؤن میں گنیش جلوس کے دوران 2 گروپوں کے درمیان سنگ باری کا تبادلہ، 8 زخمی، حالات قابو میں، وزیر داخلہ کا دعویٰ۔ مدھیہ پردیش کے برہان پور میں بھی سنگ باری کا واقعہ۔ جموں کشمیر کے کلگام میں انکاؤنٹر، ایک عسکریت پسند ہلاک، دہشت گرد سازش کے معاملے میں NIA کے 5 ریاستوں میں 20 مقامات پر دھاوے۔ موسی بیوٹیفیکیشن کے نام پر مرحلے واری لوٹ مار کی جا رہی ہے، کالیشورم اور موسی پروجیکٹ پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے دعووں پر KTR کا شدید رد عمل، نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب سے BRS پارٹی حصہ نہیں لے گی، KTR کی وضاحت۔ حیدرآباد شیخ پیٹ فلائی اوور کے پاس بے قابو گاڑی ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گئی، بائک سوار 2 نوجوان شدید زخمی، کار ڈرائیور اور ساتھی تحویل میں۔ مصری گنج بڑی گنبد درگاہ کے احاطے میں خاتون کا اقدام خودسوزی کا سنسنی خیز واقعہ، عثمانیہ ہاسپٹل میں زیر علاج۔ غزہ میں ایک اور بلند رہائشی عمارت یہودی فوج کے حملے میں زمین دوز، 50 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف برسلز اور میکسیکو میں زبردست احتجاج، انسانی سروں کا سمندر، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اور ناظرین کے ساتھ نیوز ایٹ 4 کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد اسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت، دیکھتے رہیں 4 TV۔ خدا حافظ۔